Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Indian Contract Act, I have discussed many important concepts relating to the Indian Contract Act which are important for the examination point of view. In the previous video, I have discussed with the quasi contracts, which is one of the most important question for the examination point of view. Today I am going to discuss one more important question, that is relating to the remedies which are available to the aggrieved party on the breach of contract. If we talk about the contract law, this is known as damages. When the one party to the contract breaches a contract because other party who suffers the damages is allowed to the right of compensation, that is known as aggrieved party. Means aggrieved party to the contract can claim the compensation for the loss caused due to the breach of the contract. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम अनुबंध की बात करते हैं तो अनुबंध को समाप्त करने का एक तरीका अनुबंध को भंग करना भी कहा जा सकता है। जब एक पक्षकार अपने वचन का निष्पादन नहीं कर पाता तो ये कहा जाता है कि उसने अनुबंध का खंडन कर दिया है, उसने अनुबंध को वायलेट किया है, जिसकी वजह से जो पीड़ित पक्षकार होता है उसको लॉस होता है और उसको कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और इसी अधिकारों का जो उपचार है, इन्हीं अधिकारों का जो उपचार है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत दिया गया है, दैट इज राइट टू कंपनसेशन फॉर द लॉस कॉस्ट टू द एग्री पार्टी। कि एग्री पार्टी को कंपनसेशन का अधिकार दिया गया है। तो दिस इज नोन एज लीगल रेमेडी। ये जो मैंने आपको बताया जो कंपनसेशन का जो अधिकार है ये उसकी एक लीगल रेमेडी है। If we talk about the breach of contract, here the certain types of remedies which are available to the aggrieved party. जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे कई तरह की रेमेडीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं एग्री पार्टी को अवेलेबल होती हैं। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द सर्टेन हेड्स, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया हुआ है। रेमेडीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेटरी डैमेजेस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनल डैमेजेस, or it may be by liquidated damages or the rescission. These are the certain types of remedies which are available to the aggrieved party on the breach of contract by one party. Thus, we can say that compensatory damages can be awarded. Damages can be awarded. That is most common legal remedy which is available on the breach of contract. जब हम कंपनसेटरी डैमेजेस की बात करते हैं तो ये सबसे कॉमन रेमेडी मानी जाती है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट का खंडन किया जाता है तो वहाँ पे सबसे पहली जो रेमेडी प्रोवाइड कराई जाती है दैट इज कंपनसेटरी डैमेजेस, एंड द कैलकुलेशन ऑफ द कंपनसेटरी डैमेजेस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल लॉस दैट द एग्री पार्टी हैज सस्टेन्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि जब भी कोई कंपनसेटरी डैमेजेस की हम बात करते हैं तो उसका जो कैलकुलेशन किया जाएगा, आकलन जो किया जाएगा वो इस आधार पे किया जाता है कि जो एग्री पार्टी है उसको वास्तविक रूप में कितना डैमेज, कितना लॉस हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया गया तो उसकी वजह से एग्री पार्टी को कितना लॉस सफर हुआ है, उसी आधार पर कंपनसेटरी डैमेजेस का आकलन किया जाता है। एंड दे टिपिकली फॉल इनटू द टू कैटेगरीज। जब हम कंपनसेटरी डैमेजेस की बात करते हैं तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज expectation damages and another is consequential damages. If we talk about the specific performance is also a type of remedy that is available for the breach of contract, in which a court orders for breaching the party to perform their end of the bargain. Means monetary damages are typically favor upon the specific performance as a remedy for the breach of contract. If we talk about the injunction, that serve as a similar purpose as the specific performance, and the difference is between the specific performance and the injunction is that the court orders a party to do something with an injunction order। भी वहाँ पे एक इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किए जाते हैं जिसके द्वारा कोर्ट के द्वारा पार्टीज को कुछ करने के लिए कहा जाता है। And the court oftenly orders a particular note to do something। तो वहाँ पे कोर्ट एक पार्टिकुलर नोटिस इशू करती है जो ये कहा, जहाँ पे उस नोटिस के अंदर ये कहा जाता है कि आपको ये कार्य करना है, दैट इज एन इंजंक्शन ऑर्डर।
एन इंजंक्शन में भी परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी। जब हम इंजंक्शन ऑर्डर की बात करते हैं तो ये परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ रेमेडी इज बाय रेसिशन। रेसिशन इज अलाउड to the non-breaching party to cancel the contract as a remedy for the breach rather than seeking monetary damages. The non-breaching party means every party can simply refuse to complete their end of the bargain. Rescission puts the parties back in the position if they had never entered into the contract. जैसे कि मैंने आपको बताया, जब रेसिशन की हम बात करते हैं तो ये जब एक पक्षकार अपने अनुबंध को पूरा करने से मना कर देता है, मीन्स जब एक पक्ष अपने अनुबंध को भंग कर देता है तो दूसरा जो पक्ष है वो अनुबंध को समाप्त कर सकता है, फिर वो अपने वचन को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं रहता। ये उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि मान के चलो ए ने अपनी गाय को बी को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो 10,000 रुपये में अपनी गाय को बी को बेच देगा। बी 10,000 रुपये लेकर ए के पास आता है, परंतु एक गाय को देने से मना कर देता है। तो यहाँ पर जो बी है वो 10,000 रुपये देने के लिए बाध्य नहीं है, वो अब फ्री है। तो इसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बाय रेसिशन। भाई वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एंड हो रहा है वो रेसिशन के द्वारा हो रहा है, जहाँ पे एक पक्षकार ने अपने पार्ट को पूरा करने से मना किया तो जो दूसरा पक्षकार है वो अपने पार्ट को मना कर सकता है, वहाँ पे समाप्त कर देगा, वो उसके पास ये अधिकार रहता है। If we talk about the next type of damages, that is liquidated damages. If we talk about the liquidated damages, these are the specific amount of parties agreed to in the contract as the compensation for the breach. This means the contract oftenly use liquidated damages, मतलब अपनिर्धारित नुकसानी, कि ऐसा नुकसानी, ऐसा डैमेज जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। There is a provision for where it might be difficult to calculate the करेक्ट अमाउंट और कंपनसेटरी डैमेजेस। नेचुरली आप जब देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो डैमेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं वो लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, जिसको आप पहले से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी जो डैमेजेस होते हैं वहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस ही जनरली प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वेयर देयर इज a स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द पार्टीज एग्रीड बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट जो फिक्स हुआ था पार्टीज के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी थी। तो ऐसी स्थिति में कि जब कॉन्ट्रैक्ट का यदि ब्रीच किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो कंपनसेशन होगा ना वो भी लिक्विडेटेड डैमेजेस ही होगा। दैट इज कंपनसेशन फॉर अ ब्रीच, दैट विल बी ए लिक्विडेटेड डैमेजेस। If we talk about the next type of damages, that is nominal damages. If we talk about the nominal damages, that a court may award the nominal damages as a legal remedy for the breach of contract when the plaintiff cannot support their claim for compensatory damages with the nominal damages, and the courts recognizes that a breach of contract occurred but no harm can be calculated। नेचुरली कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन तो हुआ है परंतु वहाँ पे कोई वास्तव में रूप में कोई नुकसान नहीं हुआ, हार्म नहीं पहुँचा, तो वहाँ पे जो कोर्ट है वो नॉमिनल डैमेजेस को अवार्ड करने की बात कर सकती है, नॉमिनल डैमेजेस अवार्ड करवा सकती है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस विच आर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको दो तरह के डैमेजेस बताए, वन इज नॉमिनल डैमेजेस, अनदर इज लिक्विडेटेड डैमेजेस। Hence, under the Indian Contract Act, a breach of contract occurs when one party fails to perform their obligation that is agreed upon by the contract under the contracting parties, between the contracting parties. And the consequences for the breach can vary based on the nature of the breach. जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की तो वहाँ पे जब कोई भी पार्टी अपने भाग को पूरा करने से मना कर देती है, जब कोई भी एक पक्ष अपने वचन को निष्पादन करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को भंग किया गया है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच हुआ है, जो वायलेशन हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पे उसे जो डैमेजेस प्रोवाइड कराए जाएंगे वो डैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ब्रीच, वो नेचर ऑफ द ब्रीच के ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड द टर्म्स स्पेसिफाइड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसी टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा स्पेसिफाई की गई थी, जिसको फिक्स किया गया था, उस आधार पर डैमेजेस प्रोवाइड कराए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं डैमेजेस की, जैसा मैंने आपको बताया वहाँ पे कंपनसेशन, सबसे पहले जो डैमेज है दैट इज कंपनसेशन फॉर डैमेजेस।
In case of breach of contract, the aggrieved party means non-breaching party is entitled to receive the compensation for the financial loss that is suffered by the breach of the contract, and the damages are meant to place the innocent party in the same position. Main purpose of the providing the compensation is to put the innocent party in the same position as they would have been in the contract has been performed। कि यहाँ पे जो मेन कंपनसेशन जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो डैमेजेस प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसका जो मेन मकसद रहता है वो ये रहता है कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उसको उसी सेम पोजीशन में लाना कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया गया हो। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेज दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार जो कोर्ट होती है, इन सर्टेन केसेस द कोर्ट में ऑर्डर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंपेलिंग द डिफॉल्टिंग पार्टी टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कई बार कोर्ट को वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात भी की जाती है। कोर्ट एक पार्टी को कंपेल कर सकती है कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करे, पूरा करे। और यहाँ पे जो रेमेडीज होती है दैट दिस रेमेडीज टिपिकली ग्रांटेड व्हेन द मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट कंसीडर सफिशिएंट। यहाँ पे इस तरह की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, ये केवल ये ऑर्डर तभी पास किए जाते हैं जब मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट नहीं रहता, जब पार्टीज की जो ब्रीच है वो इस तरह का है कि वहाँ पे जो उसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म किया जाना जरूरी हो जाता है। एंड मॉनेटरी कंपनसेशन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द रेमेडी टू द एग्री पार्टी। In that case, specific performance can be ordered by the court. And the third type of damage that is injunction। जैसे कि मैंने आपको बताया कोर्ट में इशू द इंजंक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ पार्टी फ्रॉम मेकिंग सर्टेन एक्शंस। कई बार क्या होता है कि कोई भी किसी भी पार्टी के द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए कोर्ट कई बार इंजंक्शन ऑर्डर भी पास कर सकती है। और इस तरह की जो रेमेडीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी या नॉन कंप्लीट जो क्लोजेज होते हैं उसके संबंध में यहाँ पे इस तरह की जो रेमेडीज है वो प्रोवाइड कराई जाती है। दिस हम क्या कहेंगे कि कोर्ट में इश्यू द इंजंक्शन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ब्रीच फ्रॉम टेकिंग सर्टेन एक्शंस एंड दिस रेमेडी इज कॉमन इन कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्विंग द कॉन्फिडेंशियलिटी और द नॉन कॉम्पीट क्लॉजेस। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेज दैट इज रेस्सिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। रेस्सिशन मीन्स मैंने आपको बताया कि इफ द वन पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट्स पार्ट, यदि कोई भी पार्टी उनमें से एक पार्टी यदि अपने पार्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है तो जो दूसरी पार्टी है वो फ्री होती है कि वो अपने पार्ट को पूरा ना करे, भंग कर सकती है। मीन्स रेसिशन इन्वॉल्व्स कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटिंग एज इट नेवर एग्जिस्टेड। भी रेसिशन का मतलब कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से समझा जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। दिस इज एन ऑप्शन व्हेन द ब्रीच इज substantial, both the parties can be restored to their pre-contractual position. And the next type of damage is that is quantum merit. Quantum merit means if a party has partially performed its obligation, they may be entitled to payment for the value of the work done. यदि मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसका कुछ पार्ट तो परफॉर्म कर दिया गया है, बाकी पार्ट अभी परफॉर्म नहीं किया गया, उसको पार्ट को परफॉर्म करने से यदि पार्टी मना कर रही है तो वहाँ पे जितना पार्ट परफॉर्म किया गया, मतलब जितना काम किया गया है उस पार्टी के लिए, नेचुरली उसका तो कंपनसेशन उसे देना होगा। तो क्वांटम मेरिट अलाउज फॉर द कंपनसेशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड। कि जो सर्विसेज रेंडर कर दी गई, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई है, केवल आप उस पार्ट का कंपनसेशन आप उसको प्रोवाइड करेंगे, इसे हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। जैसा कि मैंने आपको बताया क्वांटम मेरिट जिसको उचित परिश्रमिक का सिद्धांत भी कहा जाता है। उचित परिश्रमिक के सिद्धांत से आशय किसी व्यक्ति को उतना धन देने से है जितना कि उसने अर्जित किया है, अर्थात अर्जित परिणाम भी हम इसे कह सकते हैं। अनुबंध भंग होने की दशा में इस सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है और किसी भी अनुबंध के पूरा न होने के कारण जो नुकसान उठाने वाला जो पक्ष होता है वो अर्जित परिणाम प्राप्त करने के लिए मुकदमा चला सकता है यदि ऐसे पक्ष ने उस समय तक काम का कुछ भाग किया है, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ वन सर्टेन पार्ट हैज बीन परफॉर्म्ड, मतलब कुछ पार्ट परफॉर्म किया है जिसे करने के लिए वो कहकर अनुबंध के अंतर्गत बाध्य था। तो उस कार्य का जितना कार्य उसने किया है उसका मूल्य मुद्रा के रूप में उसे अंकित मतलब दिया जाना चाहिए उसे, और उसी को आका जा सकता है। हम ये कहेंगे जो ऐसा पक्ष अनुबंध भंग होने पर क्षतिपूर्ति के लिए अर्थात अर्जित परिणाम के अनुसार उस कार्य की कीमत की वसूली के लिए दूसरे पक्ष के खिलाफ वाद प्रस्तुत
कर सकता है। हम इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान के चलो ए ने बी को 20 डिब्बे 20 कनस्तर टीन के घी के टीन के देने के लिए ऑर्डर दिया, परंतु बी ने 20 कनस्तर की जगह उसने 15 कनस्तर उसे प्रोवाइड करवा दिए। बाकी जो 5 कनस्तर उसने घी के प्रोवाइड करने थे उसे देने से उसने मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बी ने जो 15 कनस्तर उसको प्रोवाइड कराए हैं ए को, उसकी कीमत ए को देनी पड़ेगी और वो उसके लिए बाध्य है। मतलब 15 कनस्तर का भुगतान उसे करना पड़ेगा। यदि किसी पूरे काम करने के लिए निश्चित रकम प्रतिफल के रूप में मिलने वाली है, मतलब सीधी बात है कि यहाँ पे जो 15 कनस्तर उसने प्रोवाइड करे हैं उसका परिश्रमिक उसे मिलना तय है, उसे वो देना ही पड़ेगा और वो उसे मना नहीं कर सकता। यदि वो मना करता है, ऐसी स्थिति में ए बी के खिलाफ वाद प्रस्तुत कर सकता है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक लेबर जो मकान बनाने के लिए लगाई गई है वो पूरे मकान का अनुबंध करती है, परंतु उसका कुछ हिस्सा ही बनाकर वो आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करने से मना कर देती है। तो यहाँ पर यदि वो लेबर यदि चाहे कि भी मैं केवल उतने भाग का जितना मैंने बनाया है उसका मतलब जो भुगतान है वो मुझे किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे जो बात की गई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरा मकान बनाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि अर्जित परिणाम के अनुसार उसका पैसा जो है वो वसूला जा सकता है, परंतु यदि हम क्या कहेंगे कि जब एक राज्य संपूर्ण मकान बनाने का अनुबंध करके उसका एक हिस्सा ही बनाकर अर्जित परिणाम के अनुसार ये बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। नेचुरली कि जब वो मकान पूरा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसे पूरा बनाना ही देना पड़ेगा। यदि वो एक हिस्सा बना के वो कहता है कि नहीं मुझे केवल इतने हिस्से का या पैसा दे दीजिए, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक राज्य या मालिक के बीच जब ये तय हो चुका है कि वो एक हिस्से को बनाकर उसकी कीमत ले सकता है और वहाँ पर वो उतना हिस्सा वो बना देता है, तो उसके बाद वो उसको लेने का अधिकारी होगा। जितना भी हिस्सा उसने कहा था यदि उसने वो बना दिया है नेचुरली, तो उसका जो अर्जित परिणाम है उसके अनुसार उसे पैसा वो वसूल सकता है। तो इसे हम कहते हैं उचित परिश्रमिक का सिद्धांत। मीन्स यहाँ पे क्या कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कई बार एग्जाम्स में जनरली अलग से भी पूछ लिया जाता है। जब हम बात करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट, कुछ प्रोविजंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पे जो क्वांटम मेरिट का जो सिद्धांत है यहाँ पे वो कब कब अप्लाई हो सकता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि अनुबंध का जब खंडन किया गया हो, वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स वेयर देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्री पार्टी can claim the part of the value that has been performed for the party। कि नेचुरली वहाँ पे जब कोई अनुबंध का खंडन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्षकार होता है उसने जितना कार्य किया है उसके लिए वो उचित परिश्रमिक की मांग कर सकता है। सेकंड वन इज, कई बार क्या होता है कि जो टेक्निकल कोई फॉल्ट होती है उसके कारण जो अनुबंध होता है वो अपरिवर्तनीय हो जाता है। तो जब कोई अनुबंध किसी तकनीकी गलती के कारण अपरिवर्तनीय हो जाता है तो वो व्यक्ति जिसने अनुबंध के अधीन कुछ कार्य किया है वो उचित परिश्रमिक पाने का अधिकारी माना जाता है। वहाँ पे भी उसे क्वांटम मेरिट का जो सिद्धांत है वो लागू हो जाएगा। थर्ड वन इज, ऐसे कार्य या सेवा का लाभ उठाने पर जिसको बिना परिश्रमिक के करने का दूसरे पक्ष का कोई अभिप्राय न था, जिसे हम कह जाते हैं क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स। नेचुरली कि जब क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कोई आपको मतलब कोई ना तो आप कोई प्रस्ताव रख रहे हैं ना उसकी एक्सेप्टेंस की जा रही है, और फिर भी वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था। जैसे मैंने आपको कुली वाला उदाहरण दिया था, मान के चलो कुली ने आप किसी बस से सामान लेके उतरे और वहाँ पे कुली आया, वो आपका सामान उसने आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया और आपने कोई कुछ कहा भी नहीं उसे, और जब वो पहुंचाने के बाद वो अपना पारिश्रमिक डिमांड करने लगा, आपने उसको पारिश्रमिक देने से मना कर दिया था। आप ऐसा नहीं कर सकते। वहां पे क्वांटम मेरिट जो है वो उसका जो सिद्धांत है, उचित पारिश्रमिक का जो सिद्धांत है वो लागू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य या सेवा का लाभ उठाता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो जिसको बिना पारिश्रमिक के पूरा करने का दूसरे व्यक्ति का कोई अभिप्राय नहीं है, भाई नेचुरली वो जो आपका जो कुली वो जो सामान उठा के लेके जा रहा है वो पारिश्रमिक पाने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पारिश्रमिक आपको देना होगा यदि आप उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मेरिट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आल्सो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वांटम मेरिट का जो सिद्धांत है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कई बार जनरली पूछ लिया जाता है।
And the next type of damages that is provided under the breach of contract, that is liquidated damages. Some contracts include the provisions स्पेसिफाइंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ डैमेजेस। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोविजन को जब पार्टीज के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोविजन डाल दिए जाते हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट प्री डिटरमाइंड अमाउंट पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि ऐसे जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यदि इस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो इतने रुपये का कंपनसेशन उस पार्टी को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो यदि कोई प्रोविजन इस तरह के डाल दिए गए हैं वहाँ पे जहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस के संबंध में प्रोविजन है, तो ऐसी स्थिति में if valid, court can enforce these liquidated damages in the case of breach of that contract as a compensation without requiring the proof of actual loss। वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है, वहाँ पे क्योंकि पहले से ही प्रोविजन आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाले हुए थे, तो आपको वो जो कंपनसेशन है जो डैमेजेस के अंदर लिक्विडेटेड डैमेजेस जो डाले हुए थे आपने अपने निर्धारित नुकसानी के संबंध में आपने प्रोविजन पहले से उसमें फिक्स किए हुए थे, वो आपको देने पड़ेंगे without requiring the proof of actual loss. That is known as liquidated damages. And the next type of damages, that is mitigation of damages. The non-contracting party, non-breaching party means यहाँ पे जो हम कहेंगे every party has a duty to minimize the damages suffered. If they fail to do so, the court may reduce the amount of compensation awarded. जो एग्री पार्टी होती है उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो जो डैमेजेस जो भी उसको डैमेजेस मतलब नुकसान हुआ है उसको मिनिमाइज किया जाए। यदि वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाती पार्टी, तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट होती है वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो अवार्ड किया जा रहा है उसको वो रिड्यूस कर सकती है। दैट इज नोन एज मिटिगेशन ऑफ डैमेजेस। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस दैट इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। If a party indicates through the words of action that they will not fulfill their contractual obligations before the performance of the due, and the other party can treat it as an anticipatory breach and seek remedy immediately. It is essential to consult the legal professionals for advice tailored to their specific situation, as the consequence may vary based upon the particular of the contracts and the application of the laws relating to that। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम एंटिसिपेटरी ब्रीच की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे पहले या वर्ड्स या एक्शन से पहले ये बात इंडिकेशन होती है कि सामने वाली पार्टी पहले उस ओब्लिगेशन को परफॉर्म करेगी, तभी जो दूसरी पार्टी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएगी। ये मान के चलो आपने एक लेबर बुलाई मकान बनाने के लिए, और मकान बनाने के लिए अपनी लेबर तो बुला ली, परंतु आपने मकान बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा, तो वो जो लेबर है वो अपना काम कैसे करेगी? तो नेचुरली है कि वहाँ पे उसके वर्ड से एक्शन से ये बात क्लियर है कि पहले आपको अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी सामने वाली पार्टी अपने पार्ट को परफॉर्म कर पाएगी। तो वहाँ पे एंटिसिपेटरी ब्रीच माना जाएगा। मीन्स यदि वहाँ पे जो मालिक है यदि वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं कराता लेबर को बुलाने के पश्चात, तो उसको उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी। एंड द अदर पार्टी कैन ट्रीट इट एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। यहाँ पे वो एंटिसिपेटरी ब्रीच समझा जाएगा एंड इट विल सीक रेमेडी इमीडिएटली। वहाँ पे वो जो पार्टी है वो रेमेडी को इमीडिएटली सीख कर उसको वो उसके लिए हकदार होगी। एंड इट इज़ एसेंशियल टू कंसल्ट द लीगल प्रोफेशनल्स फॉर एडवाइस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक सिचुएशन होती हैं वहाँ पे पहले ही मतलब उसके संबंध में प्रोविजन पहले से ही ड्राइव किए हुए होते हैं कि यहाँ पे यदि आप सामने वाली पार्टी अपनी जो एडवाइस देगी तो उसके लिए उसको कंसल्टेशन जो चार्जेज है वो देने पड़ेंगे। यदि आप उससे पहले कंसल्टेशन चार्जेस नहीं दे रहे तो सामने वाली जो पार्टी है वो अपनी एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। तो दीज आर द सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो जब हम कंपनसेशन की बात करते हैं, जब रेमेडीज की बात करते हैं, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनसेशन कैन बी अवार्डेड। जनरली दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे कि आपको पता है कि जब सेक्शन 37 की बात करते हैं तो सेक्शन 37 के अंदर ये कहा गया है कि पार्टीज को अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होता है उसको उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि वो परफॉर्म नहीं करती है तो इन दैट केस सेक्शन 73 विल अप्लाई। मीन्स सेक्शन 37 ओब्लाइजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 37 के अंदर एक ओब्लिगेशन डाली गई है पार्टीज के ऊपर कि जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका पार्ट आप परफॉर्म करना पड़ेगा। इन केस सेक्शन 37 इज नॉट फुलफिल्ड, भाई सेक्शन 37 के अंदर ओब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की जा रही है पार्टीज के द्वारा, तो सेक्शन 73 विल अप्लाई इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट का यदि ब्रीच होता है तो वहाँ पे सेक्शन 73 अप्लाई हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि 37 के अंदर ऑब्लिगेशन की बात की गई है परफॉर्म करने के संबंध में। यदि ऑब्लिगेशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन फिक्स की जाती हैं, परंतु यदि आप फिक्स जो ऑब्लिगेशन है यदि आपको परफॉर्म नहीं करते कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को, तो इन दैट केस 37 का आप उल्टा क्या कहेंगे 73। सेक्शन 73 विल अप्लाई that will provide the compensation for the loss or damage caused by the breach of contract. तो according to section 73 के हिसाब से there are 3 types of damages can be awarded. 3 types of वहाँ पे इसको 3 पैराज में डिवाइड किया जा सकता है। If we talk about the section 73, compensation for the loss or damages caused by the breach of contract, it is dealt with. If a party breaches a contract, the other party is entitled to receive the compensation for any loss or damage that naturally occurs from the breach in the usual course of events. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब सेक्शन 73 की आप बात करते हो तो सेक्शन 73 के अंदर ये कहा गया है कि यदि कोई भी पार्टी जो जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनमें से कोई भी पार्टी यदि अपने पार्ट को पूरा नहीं करती, यदि वो उसको भंग करती है, तो अदर पार्टीज एंटाइटल्ड, मतलब जो एग्री पार्टी है, दैट इज पार्टीज विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपनसेशन फॉर द लॉस और द डैमेज दैट नेचुरली अराउज ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से जो भी उसे लॉस हुआ है वो उसको लेने के लिए लाइबल होगी। इट विल बी लाइबल टू टेक द कंपनसेशन फॉर द लॉस दैट हैज बीन नेचुरली अराइज ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द ऑर्डिनरी यूजुअल कोर्स ऑफ इवेंट्स। जब हम सेक्शन 73 की बात करते हैं, इट डील्स विद 3 पैराज। सेक्शन 73 को 3 पैराज में डिवाइड किया गया है, पैरा 1, पैरा 2 and पैरा 3. If we talk about the पैरा 1, that deals with the breach of the contract when it takes place by the 2 types of losses. सेक्शन 73 के पैरा 1 के अंदर 2 तरह के ब्रीचेस की बात की गई है। 2 टाइप्स ऑफ लॉस प्रोवाइड कराए गए हैं। वन इज ऑर्डिनरी लॉस एंड अनदर इज प्रोबेबल लॉस। तो इन पैरा 1 ऑफ द सेक्शन 73, 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस कैन बी अवॉर्डेड। वन इज ऑर्डिनरी लॉसेस एंड अनदर इज प्रोबेबल लॉसेस एंड बोथ कैन बी टेकन। जो दोनों तरह के जो लॉस हैं उनको यहाँ पे मतलब कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड कराया जा सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द पैरा 2 ऑफ द सेक्शन 73, दैट डील्स विद द रिमोट और इनडायरेक्ट डैमेजेस। सेक्शन 73 का जो पैरा 2 है वो रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस की बात करता है। इन दैट केस नो लॉस कैन बी क्लेम्ड। जब इनडायरेक्ट या रिमोट डैमेज की आप बात करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 73 के पैरा 2 के हिसाब से इस तरह का जो लॉस है उसको क्लेम नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू पैरा 3 ऑफ द सेक्शन 73, इट प्रोवाइड्स फॉर द कंपनसेशन फॉर द क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट्स। जो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया थे सेक्शन 68 से लेकर 72 तक, यदि उनमें से किसी भी क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट का जो ब्रीच होता है सेक्शन 68 टू सेक्शन 73 तक, जो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बताए 72 तक जो कॉन्ट्रैक्ट बताए थे, यदि उनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, यदि उनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, इन केस ब्रीच टेक्स प्लेस ऑफ द क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन इट विल डेल्ट विद पैरा 3 ऑफ द सेक्शन 73। सेक्शन 73 के पैरा 3 के अंदर इसके ब्रीच के संबंध में प्रोविजन प्रोवाइड कराए गए हैं। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 73 को 3 पैराज में डिवाइड किया गया है, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। पैरा 1 जो है वो आपको एक जनरली 2 तरह के लॉसेस प्रोवाइड कराएगा, ऑर्डिनरी लॉसेस या प्रोबेबल लॉसेस। सेक्शन 73 का जो पैरा 2 है वो रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस की बात करता है और वहाँ पे ये कहा गया है कि इस तरह के जो लॉस होते हैं, जो रिमोट डैमेजेस होते हैं, उसको कंपनसेशन जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के संबंध में इस तरह के जो डैमेजेस है वो अवॉर्ड नहीं कराए जाएंगे। इट विल नॉट बी क्लेम्ड, इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। इफ यू टॉक अबाउट द सेक्शन 73 पैरा 3, जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 73 का जो पैरा 3 है वो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट जो आपके गर्भित समझौते होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यदि उनका किसी का भी वायलेशन होता है, जो सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक बताए गए हैं, सेक्शन 68 टू सेक्शन 73 के संबंध में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं, यदि उनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वहाँ पर सेक्शन 73 का पैरा 3 अप्लाई होगा इन टू प्रोवाइड द कंपनसेशन in case of quasi contracts. If we talk about the section 74, that deals with the compensation for the breach of contract where penalty is stipulated for. If a contract includes a stipulation for a penalty in case of breach, the injured party is entitled to receive the reasonable compensation not exceeding the amount specified as a penalty. जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन 74 प्रोवाइड्स
इफ ए अमाउंट इज मेंशनड इन द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो सेक्शन 74 है वो ये कहता है कि यहाँ पे यदि कोई भी अमाउंट जो यदि कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था, यदि उसके अंदर कोई भी अमाउंट पहले से ही मेंशन किया गया है, दैट इज लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड अमाउंट है वहाँ पर वो, तो वहाँ पे जो कंपनसेशन दिया जाएगा ना, जो कंपनसेशन शुड बी गिवन इन दैट प्रोपोर्शन इन ऑर्डर टू अंश्योर दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट के अंदर दिया जाएगा कि जितना पार्ट आपका परफॉर्म कर दिया जाएगा उसी हिसाब से कंपनसेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ये सेक्शन 74 कहता है। If we talk about the last section, that is section 75. Section 75 deals with the party rightfully rescinding the contract entitled to the compensation. सेक्शन 75 क्या कहता है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज राइटफुली रिसाइन, जब जो कॉन्ट्रैक्ट है यदि वो राइटफुली असाइन कर दिया गया है तो वहाँ पे जो पार्टी है दैट विल बी एंटाइटल्ड टू राइट टू क्लेम द कंपनसेशन और डैमेजेस। If a party rightfully resigns a contract due to others party's breach, they will entitled to compensation for any damage they have sustained through the non-fulfillment of the contract. क्या बताया गया आपको कि जहाँ पर कोई भी पार्टी, एक पार्टी राइटफुली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करती है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो कंपनसेशन लेने के लिए अधिकारी मानी जाएगी, जो भी उसे लॉस हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना करने की वजह से। This section aims to provide the remedies to the injured party based on the principle of the compensating them for the actual loss suffered due to the breach। ये जो सेक्शन है ये लगभग आप ये कहेंगे कि ये एक्चुअल लॉस के आधार पर बनाया गया है कि ये बताना कि कोई भी किसी भी पार्टी को जो एक्चुअल लॉस हुआ है उसके आधार पे ही इंजर्ड पार्टी को कंपनसेशन रेमेडी प्रोवाइड कराई जाएगी। It is important to note that the quantum of the compensation is generally like to be directly resulting from the ब्रीच, वहाँ पे जो डायरेक्ट जो ब्रीच हुआ है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उसकी वजह से जो भी उसे एक्चुअल लॉस होगा ना उसी के आधार पे उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीच के संबंध में तीन सेक्शन बताए हैं। जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सेक्शन 737 है उसके अंदर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म की बात की गई है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में होता है उसको पूरा करना पार्टीज का कर्तव्य बनता है, ऑब्लिगेशन है। There is obligation to perform the contract that the parties had entered into the contract। यदि किसी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है, और यदि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जाता तो इन दैट केस सेक्शन 37 का आप उल्टा करेंगे, सेक्शन 73 विल अप्लाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 मैंने आपको बताया इसके तीन पैरा बताए गए हैं, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। पैरा 1 के अंदर दो तरह के लॉसेस प्रोवाइड कराए जाएंगे, वन इज मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी लॉसेस, अनदर इज प्रोबेबल लॉसेस, और दोनों तरह के लॉस को क्लेम किया जा सकता है। सेक्शन 73 का पैरा 2 मैंने आपको बताया रिमोट या इनडायरेक्ट डैमेजेस की बात करता है जिसको क्लेम नहीं किया जा सकता इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जनरली आप कहेंगे कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो वहाँ पे नॉमिनल डैमेजेस ही अवॉइड कराए जाते हैं, वहाँ पे रिमोट डैमेजेस कभी भी अवॉइड नहीं कराए जाते, इसको क्लेम नहीं किया जा सकता। सेक्शन 73 का जो पैरा 3 है वो आपको क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के संबंध में रेमेडीज प्रोवाइड करवाता है, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक उसके संबंध में डैमेजेस प्रोवाइड कराए गए हैं। और वहाँ पे जब भी कोई क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होगा तो सेक्शन 73 का जो पैरा 3 है उसके आधार पर उसको आप क्लेम कर पाएंगे। और सेक्शन 74 के अंदर मैंने आपको ये बताया कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में, यदि वहाँ पे जो डैमेजेस है वो पहले से ही लिक्विडेटेड डैमेजेस वहाँ पे पहले से ही उसको मेंशन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो इन दैट केस सर्टेन दैट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड इन दैट प्रोपोर्शन, उसी प्रोपोर्शन में जो आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस आपने बताए थे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसी प्रोपोर्शन में वो अमाउंट आपको डैमेजेस कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। वहाँ पे आप मतलब एक्चुअल डैमेज लॉस नहीं देखेंगे, वहाँ पे एक्चुअल लॉस जो है वो उसको मतलब वहाँ पे जो कोर्ट है वो कंसीडर नहीं करेगी, वहाँ पे केवल जो लिक्विडेटेड डैमेजेस जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से ही मेंशन किए गए हैं केवल उसी को आधार पे कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन 75, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट यदि किसी दूसरी पार्टी के द्वारा राइटफुली रिसाइंड कर दिया गया है तो जो अपोजिट पार्टी है दैट हैज राइट टू क्लेम द डैमेजेस फॉर द लॉस सफर्ड ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी उस सामने वाली पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा उसकी वजह से जो भी उसे एक्चुअल लॉस होगा उसे वो प्रोवाइड कराया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75। दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट रेमेडी कैन बी अवॉर्डेड। तो यहाँ मैंने आपको दो क्वेश्चन कवर किए हैं, वन इज द रेमेडीज प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनदर इज क्वांटम डॉक्ट्राइन ऑफ क्वांटम मैरियट। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.